Okay, ji. Bismillahirrahmanirrahim. Dear friends, today we are going to talk about tactical nuclear weapons. In the previous class, we discussed about Pakistan's nuclear policy, Pakistani nuclear doctrine, and in continuation to that, um, we are going to discuss about the tactical nuclear weapon, the development of tactical nuclear weapons in South Asia, and what is the background, historical background of tactical nuclear weapons in the world, why these weapons are were developed by the major countries like, for example, Russia and US during the Cold War, and why Pakistan and India has developed these weapons. So we need to understand this, the rationale behind the induction of tactical nuclear weapons. um, we have already covered about the evolution of nuclear weapons, and the strategic weapons, that why countries acquire nuclear weapons. The ultimate purpose of nuclear weapons is to deter the other party from taking any undesirable action against you. So इसका जो ultimate purpose है, that is the deterrence. And a country acquires nuclear weapon just to deter, to stop other country from taking any undesirable action against you. So this is the ultimate purpose. So what is the difference between tactical nuclear weapon and a strategic nuclear weapon? आसान लफ्जों में मैं आपको बता देता हूं कि strategic nuclear weapon is basically a huge nuclear warhead which is used to destroy a country or to destroy a city. But as far as tactical nuclear weapon is concerned, it has small yield का मतलब है इसके अंदर बारूद वगैरह जो होता है ना, इसका यूरेनियम वगैरह वो enriched, वो कम होती है, वॉरहेड इसका कम छोटा होता है और 0.5 किलो टन का होता है. जो स्ट्रेटेजिक वेपन्स है उनके अंदर मेगा टन्स में होता है, जिसे कहते हैं एनरिच्ड यूरेनियम वगैरह या बाकी प्लूटोनियम वगैरह. ठीक है, तो इसके अंदर यील्ड पावर कम होती है. जो बड़े वेपन्स है उनके अंदर यील्ड पावर बहुत ज्यादा होती है. ठीक है, तो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का आइडिया ये होता है कि इसको बैटलफील्ड न्यूक्लियर वेपन भी कहा जाता है. इट इज डिप्लॉयड ऑन द फील्ड and it is deployed just to deter any limited war by the enemy. ठीक है, अच्छा अब हम इसको जरा समझ लेते हैं इसकी डेफिनेशन पे कि व्हाट इज द टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन. थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको दे दिया है. So basic definition of tactical nuclear weapon is that a tactical nuclear weapon, it is generally characterized as low yield and short range nuclear weapon. इसकी range भी कम होती है और इसकी जो yield power है जिसके अंदर जो इसका यूरेनियम वगैरह बाकी enriched warhead जो होता है इसका, वो उसका size भी कम होता है, छोटा होता है, ताकि इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा ना हो, एक मुल्क तबाह ना हो, एक शहर तबाह ना हो, एक खास एरिया पे ये यूज होता है ताकि दुश्मन की जो फौजें हैं उनको वहां पे उस एरिया के अंदर इंगेज किया जा सके. मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इसका पर्पस यूज करना नहीं है. व्हेन यू यूज इट यू लूज इट. तो डिटरेंस का जो असल मकसद है वो खत्म हो जाता है. डिटरेंस का मकसद तब तक जिंदा रहता है जब तक आप इसको डरा के रखते हैं अपने दुश्मन को. तो अल्टीमेट जो पर्पस था टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का वो यही था, टू डिटर the enemy from any undesirable action, limited or other war against the enemy. ठीक है, अच्छा. So tactical nuclear weapons are also sometimes referred as battlefield nuclear weapons. Battlefield nuclear weapons इनको इसलिए कहा जाता है because they are deployed in the field, because of their short range, because of their low yield. तो इनको आप battlefield के ऊपर deploy रखते हैं और इसको ताकि आपका जो दुश्मन है वो एक खास एरिया के अंदर जब आए तो आप उसके ऊपर ये वेपन मार दें. ठीक है, तो इसकी रेंज कम है और इसकी जो आउटरीच है दैट इज आल्सो लिमिटेड. ठीक हो गया, आगे चल के इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं डिटेल में. तो दे आर बेसिकली स्मॉलर बॉम्ब्स विद स्मॉलर रेंज एंड देयर ऑब्जेक्टिव्स आर आल्सो लिमिटेड. Their objectives are not to destroy a country or to destroy a city. इनके ऑब्जेक्टिव सिर्फ लिमिटेड हैं. पाकिस्तान का जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? Just to deter the Indian advancing forces, a division size force under Cold Star Doctrine, जो हमने पढ़ा था कि अगर वो आएगी हमारे एक एरिया के अंदर, खास एरिया 60 किलोमीटर की रेडियस का, तो हम एक डिवीजन साइज फोर्स के ऊपर अपना टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूज कर देंगे. ठीक है, जो कि इंडिया ने कभी नहीं किया तो हमने भी नहीं किया. ठीक है, तो इसके जो यानी कि इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं दे आर लिमिटेड. हमारा कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं था कि वी हैव टू डिस्ट्रॉय, वी आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय न्यू दिल्ली और वी आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय मुंबई और एनी अदर सिटी. तो इसका जो हमारा ऑब्जेक्टिव था दैट वाज लिमिटेड. तो स्मॉलर वेपन्स हैं, ये शॉर्टर रेंज है और
उसके अलावा ये लिमिटेड ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, ठीक है। अच्छा, तो इनकी जो कंसिडरेशन है हमारी जो न्यूक्लियर पॉलिटिक्स के अंदर, दैट इज आल्सो डिफरेंट। जो बड़े न्यूक्लियर वेपन्स हैं, स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स, दे आर यूज्ड फॉर टू डिस्ट्रॉय अ कंट्री, अ सिटी, बट इनकी जो है कंसिडरेशन हम लिमिटेड रखते हैं और इसको हम बॉर्डर तक रखते हैं। अच्छा, let's quickly analyze the historical perspective of tactical nuclear weapons. United States of America and Soviet Union, both countries developed nuclear weapons and both developed long-range nuclear bombers, long-range nuclear submarines, long-range aircraft, missiles, ICBMs, ठीक है। तो इन्होंने बहुत बड़े-बड़े लेवल के बम बना के एक लेवल पे, जो बड़ा लेवल था न्यूक्लियर का, they established a nuclear deterrence against each other, जो कि हमने पढ़ा था लास्ट टाइम। Okay, so but there was a gap at lower level. तो जब बड़े लेवल पे दोनों ने आपस में एक दूसरे के खिलाफ स्टैब्लिश कर लिया न्यूक्लियर डिटरेंस को, तो देयर वाज अ फियर इन द माइंड्स ऑफ न्यूक्लियर सोवियत यूनियन कि नेटो शायद हमारे ऊपर लिमिटेड हमला कर दे, लिमिटेड अटैक कर दे, लिमिटेड स्ट्राइक कर दे अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंग। अब लिमिटेड स्ट्राइक के लिए आप बड़ा न्यूक्लियर वेपन तो यूज नहीं करेंगे, सो ऑटोमेटिकली आपने क्या किया, इन्होंने क्या किया, दे डेवलप टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स, उन्होंने छोटे वॉरहेड बना लिए। एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डिड द सेम। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि नाटो, लाजमी बात है, उसका वो बहुत की मेंबर था और उसकी सिक्योरिटी का जिम्मेदार था। आपको पता है कि अमेरिका, यूके एंड फ्रांस, दे वर रिस्पांसिबल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ नाटो एंड दे प्रोवाइडेड नाटो विद न्यूक्लियर डिटरेंस, और न्यूक्लियर डिटरेंस की उसको कैपेबिलिटी प्रोवाइड की उन्होंने, ताकि दुनिया में कोई भी मुल्क उनके ऊपर, नाटो कंट्रीज पे, न्यूक्लियर वेपन से हमला ना कर सके। So ultimately, United States of America came up with the idea that they are going to deploy tactical nuclear weapons in Europe, especially in Belgium, Italy, Turkey, Germany, and Netherlands, just to deter any attack, limited attack by the Soviet Union against NATO countries. तो इन्होंने तकरीबन कोई 500 के करीब डिप्लॉय कर दिए, and about approximately 700 to 800 were additional developed, but they were kept in storage. Acha, on the other side, the Russians, when the Americans deployed tactical nuclear weapons, they also deployed tactical nuclear weapons, और उन्होंने भी कोई तकरीबन 5000 के करीब जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन थे उनको डेवलप किया, और उनमें से 2000 के करीब को उन्होंने डिप्लॉय किया। Why? Because they had a huge area to protect. One of the largest country है रशिया, आपको पता ही है। So they deployed more nuclear warheads than the NATO countries. So both countries, NATO and Warsaw Pact countries like Russia and US, they deployed nuclear weapons, tactical nuclear weapons, just to stop each other from any limited strikes, conventional strikes against each other. ठीक हो गया? This was the idea behind, this was the concept behind the development of tactical nuclear weapons, एक दूसरे को रोकने के लिए कि जी हमारे ऊपर कोई अटैक ना कर सके। There are different types of tactical nuclear weapons which were developed during the Cold War. आजकल पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, we have developed short range missile like Al Nasr, या जिसे हतब 9 भी कहते हैं, with a range of about 60 to 70 kilometers, और इंडिया ने डेवलप किया हुआ है प्रहार के नाम से, which has a range of approximately 100 to 150 kilometers. ठीक है, तो हमने मोबाइल किस्म के मिसाइल्स जो हैं वो तैयार किए हुए हैं, लेकिन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर डिफरेंट टाइप्स के न्यूक्लियर वॉरहेड्स को तैयार किया गया था, जिसके अंदर कुछ की मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, जैसे ग्रेविटी बॉम्ब्स थे, शॉर्ट रेंज मिसाइल्स थे, आर्टिलरी शेल्स थे, लैंड माइंस थी, न्यूक्लियर लैंड माइंस, डेप्थ चार्जेस थे, ये आगे चल के मैं बताता हूँ क्या चीज होती है, एंड टॉर्पीडोज। ये न्यूक्लियर टिप्ड वेपन्स थे सारे, और ये इनका मकसद जो था वो यही था कि दुश्मन को लिमिटेड लेवल पे रोकने का। फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटी बॉम्ब क्या था? इट वॉज अ फ्री फॉल बॉम्ब, अनगाइडेड बॉम्ब, और ये उस तरह से नहीं था जिस तरह से आप आजकल जीपीएस वगैरह सिस्टम द्वारा बने हुए हैं ना, इसको आप सिंपल एक खास एरिया के ऊपर जहाज से फेंक देते थे, ठीक है, अगर जरूरत पड़ती है तो हिरोशिमा भी यही गिराया गया था ना? नहीं, कहाँ पे, क्या नाम है उसका, जापान पे सर, जापान पे गिराया गया था। जापान पे जो बॉम्ब था वो इससे थोड़ा सा बड़ा था, ये इट इज लेस देन 5 किलो टन, लेकिन जापान वाला जो था वो तकरीबन 15 से 16 किलो टन के बराबर था वो,
उसको फैट बॉय और पता नहीं क्या कहते थे यार, मेरे ज़हन से निकल गया, लिटिल बॉय कुछ इस लिटिल तरह बॉय। का नाम था, लिटिल It's a बॉय। little boy. हाँ बिल्कुल। तो अब ये जो बॉम्ब है इसका इसका मकसद ये था कि इसको फ्री फॉल गिरा देते थे एक जगह पे और ये नीचे गिरता था और ये एक खास मतलब इसका खास एक लिमिटेड सी जगह के ऊपर ये इम्पैक्ट डालेगा। तो ग्रेविटी बॉम्ब्स उन्होंने तैयार किए, अमेरिकन ने भी और रशियंस ने भी तैयार किए, ठीक है, दोनों ने। अच्छा, उसके बाद इन्होंने शॉर्ट रेंज रॉकेट्स तैयार किए जिनके अंदर न्यूक्लियर टिप्ड मटेरियल था। अच्छा, ये रॉकेट्स जो थे इन्होंने अपने अपने बॉर्डर्स पे डिप्लॉय कर दिए एंड इट हैड अ रेंज ऑफ अबाउट 100 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली तकरीबन। मकसद क्या था? मकसद ये था कि एडवांसिंग जो फोर्सेस हैं, टैंक्स हैं, उनको रोका जा सके। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ ये काम किया और उसका फायदा भी हुआ। उसका फायदा ये हुआ कि दोनों ने एक दूसरे पे कभी अटैक नहीं किया, तो मकसद अचीव हो गया इनका ना। These were the locations where these tactical nuclear warheads were deployed. आप देख सकते हैं यूरोप के अंदर और देख सकते हैं रशियंस ने जहाँ पे डिप्लॉय किए हुए थे और बाकी जो मुल्क थे लाइक नेदरलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, इटली, टर्की वगैरह, यहाँ पे उन्होंने डिप्लॉय किए हुए थे जहाँ पे आज तक न्यूक्लियर वेपन्स पड़े हुए हैं। तो अल्टीमेट इसका मकसद क्या था इसका? टू डिटर ईच अदर फ्रॉम एनी कन्वेंशनल अटैक अगेंस्ट ईच अदर। अच्छा, इसके अलावा आर्टिलरी शेल्स उन्होंने बनाए हुए थे, यानी कि जिस तरह ये तोप खाना होता है ना आपके, ये जो तोपें होती हैं इसके अंदर शेल डलता है, नॉर्मल होता है, वो एक्सप्लोसिव शेल होता है आजकल। लेकिन उस टाइम पे इन्होंने क्या किया हुआ था, इसको न्यूक्लियर टिप्ड कर दिया था। उसके अंदर मतलब 1 किलो टन से लेके 15 किलो टन की उन्होंने यील्ड पावर रखी हुई थी, जो कि ठीक ठाक तबाही कर सकती है। यानी कि अगर 0.5 या 5 किलो टन के तक का वेपन अगर आप ड्रॉप करते हैं दुश्मन के ऊपर, तो एक खास 2-4 किलोमीटर का जो रेडियस का एरिया होगा या जो एक डिवीजन साइज की जो फोर्स होगी वहां पे, वो उसको बिल्कुल तबाह कर देगा। तो इस इट हैड अ रेंज ऑफ अबाउट 17 टू 45 किलोमीटर्स और उसके अंदर जो यील्ड पावर थी दैट वाज क्लोज टू 1 टू 15 किलो टन अप्रोक्सीमेटली। तो ये भी इन्होंने डिप्लॉय की हुई थी बॉर्डर्स के ऊपर, जो कि कभी यूज नहीं हुई for obvious reasons, because both had nuclear weapons, both had tactical nuclear weapons, both had medium range nuclear warheads, both had ballistic nuclear weapons, ballistic missiles for example, both were equipped with nuclear submarines and bombers and aircraft and everything. तो इस वजह से उनका जो हर लेवल पे जो डिटरेंस थी दैट वाज वेल एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। अच्छा, ये थी आर्टिलरी शेल्स जो रशिया ने भी डेवलप की हुई थी। ये रशिया की थी कुछ और कुछ उसकी यूएस की थी एंड दे वर बेसिकली न्यूक्लियर टिप्ड और इनके रिमेन्स आज भी पड़े हुए हैं वहां पे यूरोपियन कंट्रीज में और रशिया में। अच्छा, इसके अलावा न्यूक्लियर लैंड माइंस थी जो कि इन्होंने बॉर्डर एरियाज पे इन्होंने बरी कर दी हुई थी। एंड व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दीज न्यूक्लियर लैंड माइंस? द आइडिया वाज कि जी अगर कोई टैंक्स दुश्मन के आते हैं या उसकी फोर्सेस आती हैं, स्पीड में आती हैं और वो इन लैंड माइंस के ऊपर आएंगी, तो ऑटोमेटिकली इट वुड हैव अ न्यूक्लियर फॉल आउट। तो ये क्या होगा इससे? इससे वो फोर्सेस तो तबाह होंगी ऑब्वियसली, लेकिन न्यूक्लियर लैंड माइंस होने की वजह से इट वुड हैव रेडिएशन ऑफ कोर्स, और जो बाकी फोर्सेस होंगी, इन्फेंट्री होगी, दे विल आल्सो फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। तो न्यूक्लियर लैंड माइंस ने भी बहुत अरसे तक इनको रोके रखा आपस में, और दोनों मुल्क जो थे दे डेवलप्ड these landmines, and these landmines were buried close to the border areas especially, और फॉरवर्ड लाइन जो होती थी ना आपकी, वहां पे आप इनको डिप्लॉय कर देते थे। अच्छा, इनको लैंडमाइंस के अलावा इनको कहा जाता था एटॉमिक डेमोलिशन म्यूनिशंस, एडीएम्स के नाम से इनको कहा जाता था। अपने माइंड में रखें बस। और इसका पर्पस क्या था? पर्पस यही था कि जो एडवांसिंग फोर्सेस हैं उनको रोका जा सके दुश्मन की। तो दुश्मन डर के, अगर आपको पता हो कि यार दूसरी तरफ जो है ना उन्होंने न्यूक्लियर लैंडमाइन लगाई हुई है, तो आप कभी भी अटैक नहीं करेंगे दूसरे दुश्मन के ऊपर। सेम इज द केस विद इंडिया एंड पाकिस्तान। अगर इंडियंस को पता चल जाए कि हमने जितना भी बॉर्डर एरियाज हैं, एलओसी है, यहाँ पे हमने न्यूक्लियर लैंडमाइंस लगा दी हैं, तो क्या लगता है आपको कि इंडिया कभी भी अटैक करेगा? या पाकिस्तान ऑपोजिट कर लें, इंडिया अगर लगा दे अपने जितने भी बॉर्डर एरियाज है, राजस्थान सेक्टर में या पंजाब सेक्टर में या एलओसी कश्मीर के ऊपर, तो क्या पाकिस्तान कभी भी क्रॉस करेगा बॉर्डर? नो, दे वुड नेवर। सो दिस इज द आइडिया कि जी डिटरेंस असल मकसद है न्यूक्लियर वेपन्स के अंदर, चाहे वो टैक्टिकल हो या फिर वो स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वॉरहेड्स हो। सो इसका पर्पस इन्होंने अचीव किया। इसके अलावा डेप्थ चार्जेस, डेप्थ चार्जेस क्या होते हैं? डेप्थ चार्जेस आप एक जो आपका सबमरीन्स, जो आपके जहाज होते हैं ना, मैरीटाइम जहाज जो होते हैं समंदर के ऊपर,
आप क्या करते हैं, अपने उन जहाजों के जरिए से, हेलीकॉप्टर्स के जरिए से, शिप्स के जरिए से आप ये कुछ मिसाइल टाइप होता है, इसको आप फेंकते हैं पानी के अंदर, ताकि वो जो सबमरीन्स हैं नीचे उनको तबाह कर सके। और असल में इसका मकसद जो होता है वो सबमरीन के खिलाफ होता है। सबमरीन जो होती है ना पानी के नीचे जो चल रही होती है, दिस इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ डेप्थ चार्जेस टू डिस्ट्रॉय दोज सबमरीन्स। ये इस तरह की शॉक वेव क्रिएट करती है कि वो उनको तबाह करके रख देता है। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका ने डेवलप की तकरीबन एक डेप्थ चार्जेस, जिसका नाम था मार्क 90, विच वाज निकनेम्ड एज बैटी। इट वाज कोल्ड वॉर न्यूक्लियर डेप्थ चार्ज डेवलप्ड बाय अमेरिका इन 1952, और इसकी जो यील्ड पावर थी दैट वाज अबाउट 32 किलोटन्स। 32 किलोटन्स ठीक ठाक किस्म का वेपन होता है। और आपको आइडिया होगा कि ये जो नागासाकी और हिरोशिमा वगैरह पे जो बम गिराए गए थे, ये 15-16 किलो टन से ज्यादा के नहीं थे, और उन्होंने पूरे के पूरे शहर तबाह कर दिए थे। 5 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन मारी गई थी। सो बेसिकली इसका जो पर्पस है वो है एंटी सबमरीन वेपन। सो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डेवलप दीज कैपेबिलिटीज, और उसके जवाब में रशियंस आल्सो डेवलप दीज कैपेबिलिटीज। तो इसको इस पिक के अंदर आप देख सकते हैं, ये उस दौर की पिक है 1960s 1970s की। कि आइडिया क्या था इस बम का, कि ये सबमरीन्स जो हैं, अंडर वाटर सबमरीन्स, व्हिच कैन पोज अ सीरियस थ्रेट टू एनी कंट्री, क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियर सबमरीन, इट हैज गॉट अ ग्रेटर आउटरीच, it has got greater endurance at sea, it can provide a country with assured second strike capability. तो जब इस तरह की कैपेबिलिटीज आपके पास होती हैं तो उनको खत्म करने के लिए भी आप कैपेबिलिटीज डेवलप करते हैं। तो बैटी या ये जो वेपन था डेप्थ चार्ज, इट वाज डेवलप्ड एट दैट टाइम जस्ट टू काउंटर द सबमरीन्स ऑफ द एनिमी। जो सोवियत यूनियन की जो सबमरीन्स थी उनको काउंटर करने के लिए बनाई गई थी, और इसका पर्पस ये था कि इसको ड्रॉप करेंगे किसी भी जहाज के जरिए से, जो मैरीटाइम जहाज होता है, और या हेलीकॉप्टर्स हैं आजकल, उनके जरिए से। तो वो पानी के अंदर जाके वो ब्लास्ट करेगी, और जो सबमरीन्स होंगी पानी के अंदर उसको तबाह कर देगी। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारी और भी इन्होंने डिप्लॉय की, लाइक फॉर एग्जांपल मार्क 45 एंटी सबमरीन टॉर्पीडो। एक ये टॉर्पीडो थी जो कि न्यूक्लियर टिप्ड थी। इट वाज आल्सो डिजाइन्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और इसको उन्होंने पानी के अंदर, ये भी इसका मकसद भी यही था कि जो दुश्मन की जो सबमरीन्स है उसको तबाह किया जा सके। और ये टॉर्पीडोज जो थी, इनकी स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है, यानी कि 40 नॉट्स की इसकी स्पीड है। जो सबमरीन्स हैं उनकी स्पीड तकरीबन 30 नॉट्स के करीब होती है, 30 to 35 नॉट्स। तो ये जो इस तरह के जो टॉर्पीडोज हैं, इट हैड वेपन ऑफ अबाउट वॉरहेड ऑफ अबाउट 11 किलोटन्स, जो कि ठीक ठाक तबाही कर सकता है। सो ये भी डेवलप की गई उस दौर में। न्यूक्लियर टॉर्पीडोज, डेप्थ चार्जेस थी, उससे पहले मैंने आपको जो चीजें बताई। रशिया ने बड़ी जबरदस्त किस्म की कैपेबिलिटीज डेवलप की, जो कि उन्होंने बाद में अपनी डिप्लॉय की हुई हैं, आज भी उनके पास मौजूद है। तो इनका मकसद यही था कि दुश्मन की जो सबमरीन्स हैं, यूएस की जो सबमरीन्स हैं, उनको तबाह किया जा सके। ठीक है। ये रशिया की लेटेस्ट टॉर्पीडोज हैं जो कि न्यूक्लियर कैपेबल हैं, and these torpedoes and these missiles can take out the American warships and all these capabilities underwater. So what was the ultimate purpose of these capabilities? Deterrence, रोकना। ठीक है, एक दूसरे को रोकना फ्रॉम एनी अनडिजायरेबल एक्शन अगेंस्ट ईच अदर। तो बर्नार्ड ब्रूडी, जो कि एक जिसने किताब लिखी थी एब्सोल्यूट वेपन, जब न्यूक्लियर वेपन बने ना, तो इस बंदे ने ये पहली किताब लिखी इसके ऊपर, द एब्सोल्यूट न्यूक्लियर वेपन के नाम से, एब्सोल्यूट वेपन के नाम से। और इसका मकसद ये था कि दुनिया को बताना कि जी, thus far the chief purpose of our nuclear military establishment has been to win wars, but now in modern times it would be to avert wars, it would be to deter wars. अब आपस में लड़ना मकसद नहीं है, जंगें जीतना मकसद नहीं है, अब जंगें अवॉइड करना मकसद है। So this is the importance of nuclear deterrence at all levels. तो टेक्टिकल लेवल पे भी रशिया और अमेरिका, they never fought a direct war against each other. What was the reason behind? The reason was simple, कि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। तो इस वजह से उन्होंने ये जंग की ही नहीं, एक दूसरे के खिलाफ वो यूज करना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। So the same rationale was developed, was pursued by Pakistan as well. India and Pakistan. Pakistan developed, strategic nuclear warheads just to stop India from any nuclear war with Pakistan. तो हमने बड़े लेवल पे न्यूक्लियर वेपन बना लिए, जैसे हमारे शाहीन है,
या गौरी है with a range of about 2700 kilometers, 3000 kilometers, just to stop India from any nuclear war. एक होगी बात. दूसरे नंबर पे just to avoid India, just to stop India from any conventional large scale war, जो कि 65 की या 71 टाइप की वॉर थी, उसको रोकने के लिए हमने किया. We were successful. But things got out of control when India developed limited war strategies like Cold Star doctrines, like proactive military operations. ना अब ये क्या थी चीजें? ये इंडिया की लिमिटेड वॉर स्ट्रैटेजीज थी जो मैंने आपको पहले पढ़ाई थी कि आफ्टर 2004 या स्पेशली आफ्टर द फेलियर ऑफ ऑपरेशन पराक्रम 2001-2 में जो हुआ था, उसके बाद इंडिया कुड नॉट अटैक पाकिस्तान. इंडियन पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था और इंडिया brought about 800,000 troops on the border with Pakistan, but they could not cross the border. They could not attack Pakistan. What was the reason? The reason was simple, that Pakistan had nuclear weapons. तो 2001-2 में इंडिया को फेलियर हुआ. अब इंडिया ने क्या किया? उस फेलियर को ओवरकम करने के लिए इंडिया डेवलप्ड अ लिमिटेड वॉर स्ट्रैटेजी, जिसको उन्होंने नाम दिया कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन. कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन का मकसद ये था कि इंडिया इज गोइंग टू कैरी आउट लिमिटेड स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान बिलो द न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड ऑफ पाकिस्तान. अब न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्या था पाकिस्तान का? 4 रेड लाइंस थी. पहली कि इफ इंडिया टेक्स आउट लार्ज चंक ऑफ पाकिस्तानी टेरिटरी, हमारा कोई बड़ा शहर पकड़ लेता है, लाहौर, सियालकोट, ये वो, तो पाकिस्तान विल यूज न्यूक्लियर वेपन्स. इंडिया कहता है जी कोल्ड स्टार्ट में कि मैं तो बड़ा शहर पकड़ूंगा ही नहीं, मैं तो छोटी सी जगह पकड़ूंगा. ठीक है, तो पाकिस्तान का तो वो रैशनल ही नहीं बनता फिर न्यूक्लियर वेपन यूज करने का. दूसरा हमारा रेड लाइन क्या थी? लार्ज चंक ऑफ पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस, डिवीजन साइज फोर्स, या हमारी कोई कोर या कोई इस तरह बड़ा हमारा जो कंसंट्रेशन है फोर्स की वो तबाह हो जाएगी, वी विल यूज न्यूक्लियर वेपन्स. अब इंडिया कहता है हम तो वो करेंगे ही नहीं, हम तो छोटे लेवल पे पाकिस्तान की आउटपोस्ट को पकड़ेंगे, तबाह करेंगे, तो हम तो न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं कर सकते उसके ऊपर. अच्छा, तीसरे नंबर पे इंडिया कहता है जी कि इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन. पाकिस्तान कहता है अगर आप करेंगे तो हम आपको आपके ऊपर न्यूक्लियर वेपन मार देंगे. इंडिया कहता है हम करेंगे नहीं न्यूक्लियर स्ट्रैंगुलेशन, कभी भी इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन, ना हम मैरीटाइम ब्लॉकेट करेंगे, ना हम कुछ और करेंगे. चौथे नंबर पे हमारी थी रेड लाइन के जी लार्ज स्केल पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन. वो कहते हैं पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन हम लार्ज स्केल करेंगे ही नहीं, ना ही उन्होंने की. उन्होंने सिर्फ इतनी की कि पाकिस्तान के 80,000 लोग मर गए, 7,000 फौजी मर गए, $200 बिलियन के नुकसान हो गए, लेकिन मुल्क नहीं टूटा. ठीक है, तो हम न्यूक्लियर वेपन नहीं मार सकते. तो इंडिया ने क्या किया? आपकी जो रेड लाइंस थी उनके नीचे उन्होंने एक स्ट्रैटेजी डेवलप की कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन के नाम से, लिमिटेड वॉर के नाम से. तो उसको उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश की, जिसको पाकिस्तान ने कन्वेंशनल और न्यूक्लियर के जरिए से रिजॉल्व किया. कन्वेंशनल किस तरह से किया? अज़्म नो एक्सरसाइजेस करके 2009 के बाद पाकिस्तान डेवलप्ड इट्स ओन कैपेबिलिटीज, कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज डेवलप की. और उसके साथ 2011 में पाकिस्तान डेवलप टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स, जिनको हमने अल नसर या हतब 9 का नाम दिया, विच हैज अ रेंज ऑफ अबाउट 60 to 70 किलोमीटर. और इसको हम कंटिन्यू करते हैं ब्रेक के बाद. ये जरा दोबारा मैं लिंक आपको भेजता हूँ, बंद होने वाला है. ठीक है. In the meanwhile, if you got any question, you can mention it in the chat box. तो मैं बाद में फिर आंसर करता हूँ इसको. ठीक है, see you.